Honorable members, I cordially welcome you all to the 34th National Youth Parliament session, and I hope the session will be a very fruitful one. We'll start our session with the oath of affirmation of the newly elected members. Members to take oath of affirmation, Secretary General, please. Ms. Soni Lama, who stands elected from the Guwahati constituency of Youth Parliament, will now take oath or affirmation. Ms. Soni Lama, please. Madam, do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? In Assamese, please. মই সোনি লামা যুৱ সংসদৰ নিম্ন সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱাত ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে আইন অনুসৰি ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰিম, যিটো কৰ্তব্যলৈ মই ওপৰত পৰিৱেশ কৰিব ওলাইছোঁ। Mr. Akshay Jhakar, who stands elected from the Bikaner constituency of Youth Parliament, will now take oath or affirmation. Mr. Akshay Jhakar, please. Sir, do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? In Sanskrit, please. अहम अक्षय जाकर युवा संसद से निम्न सदन से सदस्यत्वे निर्वन्ति सन् ईश्वरस्य नामं सप्तं करोमि यत् अहं सार्वभौमत्वं यथा कानूनं स्थापनं यथार्थं विश्वासं निष्ठां च वहिष्यामि यत् अहं सार्वभौमत्वं धारयिष्यामि तथा च भारतस्य अखण्डता यस्मिन् कर्तव्ये अहं प्रविष्टः अस्मिन् तत् निष्ठां निर्विशामि इति च। जय हिन्द। Honorable members, as we are meeting after 2 months, therefore, it is my sad duty to inform the House about the sad demise of a former member of 33rd Youth Parliament session and a former member of Education Minister of our country, Shri Anand Singh Ji. He passed away on 16th November 2023. He was 71 years old and he was admitted to AIIMS on 10th October 2023. His death is certainly sad. I express my deepest condolence to his bereaved family. माननीय सभापति महोदय, मैं आप और सदन के अन्य सदस्यों द्वारा दी गई श्रद्धांजलि से खुद को जोड़ना चाहता हूँ। श्री आनंद सिंह जी का हमें छोड़कर चले जाना मेरे लिए अपूर्ण क्षति और असहनीय पीड़ा का विषय। श्री सिंह जी स्पष्टवादी, सौम्य तथा ज्ञानी व्यक्ति थे। मैं और मेरे पक्ष के सभी सदस्य उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भवपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री आनंद सिंह जी के निधन की खबर सुनते ही मैं ही नहीं वरन पूरा देश ही स्तब्ध रह गया। श्री आनंद सिंह जी
जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे एवं आम जनता से जुड़कर राजनीति करते थे एवं कड़े फैसले लेने के लिए कभी पीछे नहीं हटते थे। उनके चले जाने से भारतीय राजनीति को काफी गहरा झटका लगा है। मैं अपनी और विपक्ष की ओर से उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। Now, I request the House to stand in silence for a while to express our deep sorrow. Om Shanti. Secretary General may convey the message of condolence to the bereaved family. Yes, madam. Now, Honorable Prime Minister will introduce the new minister to the House. Honorable Prime Minister, please. अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे और सदन से नए मंत्रियों का परिचय कराना चाहता हूँ। श्री विवेक कुमार, जल शक्ति मंत्री। सुश्री शार्या सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री। Members, let us move on to our next item of our list of business today. Now, question hour. Question number 101. Ms. Amin Fatima, please. अध्यक्ष महोदय, क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी का पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी जाने वाली वित्त सहायता का विवरण क्या है? गा पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? गा पारंपरिक खेलों को गा केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार क्या सरकार का राष्ट्रीय स्तर पर पारंपरिक खेल प्रतियोगिता आयोजित करने की कोई योजना है, और यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? धन्यवाद। Minister of Youth Affairs and Sports, Ms. Mahi Jimnani, please. धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। क से घ। अध्यक्ष महोदया, खेल 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्य का विषय है। पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने और उनकी प्रतियोगिताओं को आयोजित करने सहित खेलों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की है। केंद्र सरकार केवल महत्वपूर्ण कमियों को पाटकर उनके प्रयासों को पूरा करती है। हालांकि खेलो इंडिया योजना विशेष रूप से देश में ग्रामीणों और स्वदेशी एवं आदिवासी खेलों के विकास और प्रचार के लिए समर्पित है। इस योजना के तहत बढ़ावा देने के लिए मलखम, कलारीपयट्टू, गतका, थांगता, योगासन और सिलबम जैसे स्वदेशी और पारंपरिक खेलों की पहचान की गई है और ये खेल वार्षिक रूप से खेले जाने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी या युवा खेलों के हिस्सा है। इस योजना के तहत बुनियादी ढांचे के विकास, उपकरण सहायता, कोचों की नियुक्ति, कोचों के प्रशिक्षण और पहचाने के एथलीटों को छात्रवृत्ति के लिए अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं। धन्यवाद महोदया। Any supplementary question, Ms. Amin Fatima? नहीं महोदय। The floor is now open for supplementary question. Next question, question number 102. Ms. Trisha Singh, please. Speaker Madam. Question number 102. Will the Minister of Women and Child Development be pleased to state that whether decline in child sex ratio has been recorded in some state or union territories during the past year? If so, provide details. B. State if the government has conducted any survey in the areas or districts where decline child sex ratio has been recorded. If so, detail to be given. Thank you, Madam. Minister of Women and Child Development, Ms. Astha Agrawal, please. Honorable Speaker Madam, the government is trying its level best to improve the child sex ratio with many innovative programs. It has reached many positive improvements in sex ratio. Many states have improved their sex ratio considerably in recent past years. However, few states like Union Territory, few states and Union Territories like Andaman and Nicobar Islands, Bihar, Lakshadweep, Mizoram, Tripura, Dadar and Nagar Haveli, etc. are yet to be improved their sex ratio. B. The last census was conducted in 2011. As per the recent available report, an improving trend of 15 at national level from 918 in 2013-14 to 933 in 2022-23 has been observed. Thank you, Madam. Any supplementary question, Ms. Trisha Singh? No, Madam. The floor is now open for supplementary question. Yes, Mr. Pranade, please. Honorable Speaker Madam,
will the minister be pleased to state that whether the government have issued necessary guidelines to the states which have not shown any improvement in sex ratio, and if so, the details thereof. Thank you, madam. Minister of Women and Child Development. Madam, the government taking consistent effort under Beti Bachao Beti Padhao scheme at all levels to generate awareness to stop sex selection and birth and encourage positive action to support health, growth, development and right of the girl child. The Ministry of Health returned to the Ministry of Health and Family Welfare and considered to the state government to take effective steps to address the issue of declining sex ratio at birth. Thank you, madam. Next question, question number 103. Ms. Tanisha Singh, please. Honorable Speaker, Madam, with the success of Chandrayaan 3, India became the first country to land on the Moon South Pole. It is a proud moment for India. Respected member, this is the question hour. Could you please come to the question? Yes, Madam, with all due respect, is the government aware of the fact that the startups in Indian space sector are not being encouraged? I want to ask, A, whether the government has taken necessary actions to make Indian space sector more business friendly, to beat the encouraging growth of Indian space sector or beat the FDI investments. B, if yes, the details thereof. If not, the reasons thereof. Thank you, Madam. Minister of State for Department of Space, Ms. Niharika Vakre, please. Honorable Speaker, Madam. A, I want to make it clear for my respected colleagues that reform in the space sector, which is undertaken by the government to make it business friendly. First, we released the Space Policy 2020. Second, several steps has been taken to enable non-government entities, NGOs, including startups, to take up an end-to-end space dominance activities. Third, the government has also came up with several initiatives which has been taken care of things such as in a space seed fund scheme, issue facilities to be offered free of cost or at reasonable prices to the private sector, frequent meet roundtable with national and international industries for the potential support. And B, recently, the government has also approved the Space Policy of 2023, which advises a greater role for the private sector for the value chain of space dominance. Currently, FDI in the space sector is permitted under heading the satellite establishment and operations via the government road up to 100%. Thank you, madam. Any supplementary question, Ms. Tanisha Singh? No, Madam. Next question, question number 104. Mr. Bhumi Kumar Verma, please. माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न शिक्षा मंत्री जी से है। क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ये सच है कि हाल ही में देखे गए रुझानों में अलग अलग आयु वर्ग के छात्रों में उनकी पढ़ाई, परीक्षा और साथ ही साथ परीक्षा परिणामों को लेकर उनकी चिंता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है? यदि हाँ, तो उक्त चिंताओं को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? धन्यवाद महोदय। Minister of State for Department of Education, Ms. Anandi Samitra, please. माननीय अध्यक्ष महोदय का हाँ, माननीय सदस्य ने जो भी कहा मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ, सरकार ने उक्त चिंताओं को कम करने के लिए बहुत से उपाय किए। मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों, शिक्षकों एवं परिवार के सभी सदस्यों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न गतिविधियों पर एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हुए मनोदर्पण नामक पहल शुरू की है। छात्रों तक देशव्यापी पहुंच के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 844-844-0632 जारी किया गया है। NCERT छात्रों को मनोवैज्ञानिक पाठ्य पुस्तक प्रदान करती है जिसमें चिंता एवं तनाव के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। CBSE ने मानसिक स्वास्थ्य पर दोस्त फॉर लाइफ नामक ऐप लॉन्च किया है। मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी परीक्षा पे चर्चा एवं एग्जाम वॉरियर्स जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। धन्यवाद। Any supplementary question, Bhumi ji? नहीं महोदय। The floor is now open for supplementary question. Yes, Ms. Anushka, please.
मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगी कि क्या छात्रों की भलाई के लिए भावनात्मक साक्षरता अर्थात इमोशनल लिटरेसी को विद्यालय के सभी क्रियाकलापों जैसे पाठ्यक्रम, औपचारिक और अनौपचारिक गतिविधियों में शामिल किया जाएगा? यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? यदि ना तो इसके कारण क्या है? धन्यवाद महोदय। ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रालय ने एनईपी 2020 जारी किया है, जिसमें छात्रों की भावनात्मक साक्षरता के लिए कई रणनीतियों की सिफारिश की गई है। एनईपी 2020 में छात्रों के समग्र विकास के लिए भावनात्मक क्षमता को बढ़ाना भी शामिल होना चाहिए। आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम के तहत जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए भावनात्मक कल्याण एवं मानसिक स्वास्थ्य पर एक पूर्ण मॉड्यूल भी शामिल किया गया है। धन्यवाद महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, मिस्टर आदित्य अग्रवाल प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सांस्कृतिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिद्ध और आयुर्वेदिक दवाओं की पद्धति से संबंधित मूल्यवान पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है, और यदि हाँ तो तथ्य संबंधित ब्यौरा क्या है, और पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कितने दुर्लभ अभिलेखों, दस्तावेजों और अन्य पांडुलिपियों को डिजिटलीकृत किया गया है? धन्यवाद महोदय। माननीय संस्कृति मंत्री श्री आशीष शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी ने एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय को सदन के सामने रखा है। मैं आपके माध्यम से इस सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के माध्यम से 5.2 मिलियन पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण किया है, 90 मिलियन फोलियो का संरक्षण किया है और भारत की पांडुलिपियों की विरासत के 3.5 करोड़ पृष्ठों को डिजिटाइज किया है। महोदया, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन ने पहले ही अपने वेबसाइट पर 1,20,000 पांडुलिपियां अपलोड कर दी हैं, जिनमें से लगभग 70,000 पांडुलिपियां अनुसंधान के लिए सार्वजनिक डोमेन पर निशुल्क उपलब्ध हैं। महोदया, सिद्ध और सार्वजनिक पांडुलिपियां डेटाबेस का हिस्सा हैं। कोविड-19 के कारण राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन पिछले 3 वर्षों से पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण नहीं कर पाया है। हालांकि यह पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण में समर्पित रूप से शामिल रहा है। धन्यवाद महोदय। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन नंबर 305, मिस्टर अंसारी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, न चांद की चाहत न तारों की चोइस। यह प्रश्न काल है, कृपया सीधा प्रश्न पर आए। जी महोदया, मैं प्रश्न पर ही आ रही हूँ। न चांद की चाहत न तारों की चॉइस है, ना चांद की चाहत न तारों की चॉइस है। मेरी शादी में प्याज के भजिए और टमाटर की चटनी बने, बस इतनी ही ख्वाहिश है, बस इतनी ही ख्वाहिश है। कृपया आपसे विश्वास हो जाइए। महोदया, कि सरकार को यह पता भी है कि हाल ही में टमाटर 200 रुपए प्रति किलो भाव के साथ आसमान छू के आ गया है। हमारे घरों में टमाटर का सेब के साथ उठना बैठना हो गया था, और अब शायद लगता है कि यही हालत प्याज के साथ भी होने वाली है। क्या उपभोक्ता मामलों के मंत्री हमें इसकी वजह बता सकते हैं? धन्यवाद महोदय। मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स मिस्टर अरमान चौरसिया प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, टमाटर की कीमत में वृद्धि का एक प्रमुख कारण मानसून से पहले अत्यधिक तापमान और फिर मानसून का देर से आना था। जब भंडार में रखी गई रबी प्याज का खत्म होना और खरीफ प्याज का देरी से आने के कारण सप्लाई की हालत खराब है। इस वजह से टमाटर की कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। धन्यवाद महोदय। Any supplementary question, Mr. Ansari? नहीं महोदय। The floor is now open for supplementary question. Yes, Ms. Sakshi please. अध्यक्ष महोदय, ऐसा कभी टमाटर तो कभी प्याज के साथ हो रहा है। हम जानना चाहेंगे कि सरकार टमाटर सहित आवश्यक वस्तु की मूल्य वृद्धि को रोकने और गरीब लोगों को मूल्य वृद्धि से बचाने में विफल क्यों रह रही है? धन्यवाद महोदय। ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं लगता कि सरकार आवश्यक वस्तु को मूल्य वृद्धि को रोकने में विफल। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने समय समय पर कीमतों को स्थिर करने के लिए कई कदम उठाए।
कीमतों को कम करने के लिए बफर से रियायत, स्टॉक की निगरानी, व्यापार नीति में बदलाव, कोटे में आज छूट में बदलाव, वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध आदि शामिल है। धन्यवाद महोदय। No more question, please. The question hour is now over. शून्यकाल सुश्री अंजलि जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र कोरबा के अंतर्गत मनेन्द्रगढ़ रेलवे स्टेशन लगभग 50 किलोमीटर के दायरे को तथा लगभग 50,000 की आबादी को सेवा प्रदान करता है। कोरोना महामारी के दौरान यहाँ से होकर जाने वाली अनेक लोकल ट्रेनों का परिचालन बंद हो गया। यहाँ के लोग अच्छे स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा इत्यादि सुविधाओं हेतु बिलासपुर तथा रायपुर जैसे शहरों की नियमित यात्रा करते हैं। लोकल ट्रेनों का परिचालन बंद होने के कारण स्थानीय लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि वे इन लोकल ट्रेनों का परिचालन यथाशीघ्र कराएं, जिससे कि यहाँ के लोग बिना किसी असुविधा के अपना सुचारू जीवन चला सकें। धन्यवाद महोदय। Honorable Speaker, Madam, a serious breach of privilege has been committed by a leading newspaper of Delhi while commenting on the Government of National Capital Territories of Delhi Amendment Bill 2023, which is approved by the Parliamentary Standing Committee. The paper has attributed dishonest motive. Madam, I request you to allow me to raise a question on this matter now. Miss Jia Tiwari, you cannot spring surprises on me like this. Have you given the notice of it earlier? You may give a copy of newspaper cutting and then I shall consider it. I have already given the notice of it at 10:15 a.m. today. The matter will be examined and then I shall let you know my decision. Thank you, Madam. Papers to be laid on the table. Honorable Minister of Railways, Mr. Sushant Tiwari, please. Honorable Speaker, Madam, I beg to lay on the table a copy of report on the progress made in the intake of scheduled caste and scheduled tribes against vacancies reserved for them in recruitment and promotion in the railways for the year 2023. Thank you, Madam. Honorable Minister of Shipping, Ms. Shreya Thakur, please. Madam, I beg to lay on the table a copy of report on the annual report of the Sagarmala Development Company Limited, New Delhi for the year 2022 to 23, along with audited accounts and comments of the Comptroller and Auditor General Forum. Thank you, Madam. Secretary General to report the message from the upper chamber of the Youth Parliament. Madam, I have to report the following message received from the Secretary General of the Upper Chamber of Youth Parliament. In accordance with the provision of the rules of procedure and conduct of business, I am directed to enclose a copy of the Constitution 128 Amendment Bill 2023, Ordinary Shakti Vandan Adhiniyam, which has been passed by the Upper Chamber at the sitting held on 24th September 2023. Secretary General to lay on the table a copy of bill as passed by the upper chamber of the Youth Parliament. Madam, I lay on the table of the House the Constitution 128 Amendment Bill 2023 as passed by the upper chamber of Youth Parliament. Secretary General to lay on the table the 9 bills as passed by the upper chamber of the Youth Parliament during the last session and presented by the President. Yes, Madam. Honorable members, I have an announcement on my behalf and on behalf of the honorable members of the House. I have a great pleasure in extending our warm welcome to Her Excellency Ms. Wendy Morton, Speaker of British Youth Parliament, Ms. Anderson, and Ms. Joy Mossy, Deputy Speaker of British Youth Parliamentary Delegation, for on the visit of India as an honored guest. It is a high-powered delegation. The delegation arrived on 26 November 2023 for a 5-day visit on the invitation of Indian Youth Parliament. They are now seated in their special box. We wish them a happy and faithful stay in our country. We also convey our warm welcome to the Government of Indonesia and the friendly people of Indonesia. Now, let us take calling attention motion. Ms. Priyanshi Chaubey to call the attention of the Minister of Education. माननीय अध्यक्ष महोदया, देश की सांस्कृतिक राजधानी है वाराणसी, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु मां गंगा को साक्षी मानकर
चढ़ावा लेकर मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं। देश की एक और राजधानी है कोटा, कोचिंग सेंटर की राजधानी। यहाँ भी हर साल लाखों छात्र अपने अपने जीवन की पटकथा लिखने 1.25 लाख का चढ़ावा लेकर शिक्षा के मंदिरों में जाते हैं। महोदय, इस वर्ष इस शहर में अब तक 26 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया है और कौन जानता है कि जब हम ये चर्चा समाप्त करें तब तक यह आंकड़ा बढ़कर 27 न हो गया हो। मैं इस अत्यंत संवेदनशील एवं गंभीर मुद्दे पर माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। धन्यवाद महोदय। माननीय शिक्षा मंत्री श्री प्रदीप जारी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए इस मामले की गंभीरता को समझता हूँ। हमारी सरकार कोटा में हो रही दुखद घटनाओं पर नजर बनाए हुए है। इस संबंध में हमने प्रसिद्ध शिक्षाविदों के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग्स भी ली है तथा राजस्थान सरकार, कोटा के स्थानीय प्रशासन, कोचिंग सेंटर्स के मालिकों, शिक्षकों इत्यादि से भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। मिस प्रियांशी चौबे। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले महीने अखबार में छपी कुछ हेडलाइंस मैं आपको सुनाती हूँ, गौर कीजिएगा। कोटा में अगस्त महीने में 6 स्टूडेंट्स ने किया सुसाइड। कोटा में छठे माले से कूदकर एक और छात्र ने दी जान। 8 महीने में 25, कोटा में एक और छात्र ने दी जान। कोटा में 24 घंटों में 2 और छात्रों ने किया सुसाइड। अगर इस सदन को यह खबरें सिर्फ हेडलाइंस दिख रही हैं, तो आप गलत हैं। यह देश के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करती हूँ कि वह कोई ठोस कदम उठाए जिससे कि हमारे देश के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। धन्यवाद महोदय। मिस रिया द्विवेदी। उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्रियांशी जी ने जो हेडलाइंस पढ़कर सदन को सुनाई है, मुझे लगता है कि उसने आप सभी की आत्मा को झकझोर दिया होगा। देश की आजादी के समृद्ध काल में भी कोटा शहर अपने विष काल को भोग रहा है। डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना दिखाने वाली ड्रीम फैक्ट्रीज के बच्चों के तनाव और असफलता को कभी किसी ने गंभीरता से ही नहीं लिया। महोदय, मैं 2 पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी कि गले में लग रहे फंदे की कहानी कौन सुने, कि गले में लग रहे फंदे की कहानी कौन सुने, रातें रो रो कर कट रही जुबानी कौन सुने। कहीं अपने ही तो जिम्मेदार रहा हो इस कहानी के, कहीं अपने ही तो जिम्मेदार रहा हो इस कहानी के। जो बच्चे बचे हैं इस शहर में, उनकी परेशानी कौन सुने, उनकी परेशानी कौन सुने। धन्यवाद महोदय। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया, हाँ बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है, बड़ा होने से डरता है। महोदय, तथ्य और आंकड़े हम सभी को मालूम है। प्रश्न ये है कि हम सब इन आत्महत्याओं के बारे में कितने गंभीर हैं। क्या माननीय शिक्षा मंत्री ये स्पष्ट करने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा कोटा और इसके जैसे और शहरों में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के तनाव और आत्महत्या जैसे कदम उठाने से रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? आगे कैसे इन्हें रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है? धन्यवाद महोदय। माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत के कोचिंग हब के रूप में जाना जाने वाला कोटा ने छात्रावादी के बीच आत्महत्याओं की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है। शिक्षा मंत्री के रूप में मैं स्थिति की गंभीरता और इससे हमारे नागरिकों को होने वाली पीड़ा को समझता हूँ। खोई हुई प्रत्येक जान एक गहरी त्रासदी है और हमारी संवेदनाएं उन प्रत्येक परिवारों और दोस्तों के साथ है जो हृदय विदारक घटनाओं से प्रभावित हुए हैं। भारत सरकार हमारे युवाओं की भलाई
और मानसिक स्वास्थ्य के लिए गहराई से प्रतिबद्ध हैं। हमने छात्रों, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के सामने आने वाले तनाव और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए कई कदम उठाए हैं। हम छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम विकसित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें हम कोटा और अन्य शैक्षिक केंद्रों में मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिकों की स्थापना सहित स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। ये क्लिनिक मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों का सामना करने वाले छात्रों को पेशेवर परामर्श और सहायता भी प्रदान करेंगे। साथ ही माता पिताओं और शिक्षकों को संकट के संकेतों को पहचानने और संबोधित करने में भी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। मैं कोचिंग सेंटरों, शैक्षणिक संस्थानों, अभिभावकों सहित सभी हितधारकों से यह आग्रह करता हूं कि वह एक ऐसे माहौल को बढ़ावा दे जहां मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के लिए मदद मांगने को कलंकित नहीं बल्कि प्रोत्साहित किया जाए। महोदया, इसके अलावा कोचिंग संस्थान प्रत्येक बुधवार को आधे दिन पढ़ाई और आधे दिन मौज मस्ती करेंगे और आने वाले अगले 2 दिनों तक कोई नियमित परीक्षा भी नहीं लेंगे। कोटा में आत्महत्या का मुद्दा एक समाज के रूप में हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की गंभीर याद दिलाता है। हमारी सरकार इस चुनौती से व्यापक रूप से निपटने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस प्रतिष्ठित सदन के समर्थन और हमारे नागरिकों के समर्पण के साथ हम एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे जहां कोई भी युवा जीवन इतना बोझिल महसूस ना करे कि वह आशा खो दे। धन्यवाद महोदया। Ms. Kumkum Singh wants to bring adjournment motion. Ms. Kumkum Singh, please ask for leave of the house. Honorable Speaker Madam, nowadays the investigating agencies of the country raid and arrest a huge number of citizens in the name of tax-related cases. These acts of agencies seem politically motivated and deserve immediate discussion in the House. Hence, I beg for leave to move the adjournment motion. Thank you, Madam. The question is that the leave be granted to the honorable member to move the adjournment motion. Those who are in favor will stand up. Members, please be seated. Since less than 1/10 member are in favor, hence honorable member does not have the leave of the house to move the adjournment motion. Now we will take up discussion under Rule 193. Ms. Rishita Rai, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ महीनों में देश के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर उत्तर पूर्वी राज्यों में महिलाओं के विरुद्ध कुछ गंभीर अपराध की खबरें सामने आ रही हैं। सरकार महिलाओं की सुरक्षा का दावा तो करती है, पर दुर्भाग्य से यह फेल हो चुकी है। सरकार फेल क्यों हो रही है? आप सभी शांत हो जाइए। यह प्रश्न लाखों का नहीं बल्कि लाखों महिलाओं की सुरक्षा का है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि आखिर सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है। धन्यवाद। श्री गौरव अग्रवाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बहुत खुश होते हैं कि हम चांद पर सुरक्षित पहुंच गए हैं, पर इसका क्या फायदा जब हम 6 बजे के बाद अपने घर के बाहर अपनी लड़कियों को सुरक्षित नहीं रख सकते। महोदय, आज भी आजादी के 75 वर्षों बाद जब देश आजादी का अमृत काल मना रहा है, आज भी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में 6 बजे के बाद आदिवासी कर्फ्यू में चली जाती है। क्या ये देश के लिए शर्म की बात नहीं है? मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार इन देश की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार क्या कर रही है। मिस्टर सुदीप्त, प्लीज। Honorable Speaker Madam, according to the government data, 30% of the women in India are subjected to physical and sexual violence. According to the NCRB in India, all the way from 2 months old to 19-year-old women are raped officially. Unofficially, we all never know. Madam, does the Honorable Home Minister even know her responsibility towards the nation? Why has the government not faced the nation yet on this issue? Thank you, Madam. Honorable Home Minister, Ms. Shreya Sinha, please. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिन घटनाओं पर विपक्ष आज चिंता जता रहा, वह घटना तब भी हो रही थी जब इनकी सरकार। Members, please maintain the decorum of the house. Member, you may continue. लेकिन पिछली सरकार की तरह हमारी सरकार ने केवल इसके लिए चिंता नहीं किया, बल्कि कृपया आप सभी शांत हो जाइए।
हमने कई कदम उठाए जिससे महिला सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अध्यक्ष महोदया, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और विकास पर सिर्फ 2023 में ही गृह मंत्रालय में 25,449 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मैडम, मैं सदन को बताना चाहती हूँ, एनसीआरबी डाटा के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा में भी हमारी सरकार आने के बाद 25% की कमी आई है। इसके अलावा गृह मंत्रालय में जो कदम उठाए गए हैं महिला सुरक्षा को लेकर, उससे भी सदन को अवगत कराना चाहती हूँ। पहला, 112 आपातकाल नंबर, दूसरा पिंक पुलिस बूथ और पिंक पेट्रोलिंग, तीसरा हर पुलिस स्टेशन पे महिला हेल्प डेस्क, चौथा मिशन शक्ति योजना इत्यादि। धन्यवाद महोदया। Now, let us take our legislative business. To start with introduction of the bill, Honorable Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Mr. Pankaj Chopra, please. Honorable Speaker, Madam, I beg to move for leave to introduce a bill to introduce agriculture curriculum in National Education Policy 2020. The question is that the leave be granted to introduce National Agriculture Curriculum in National Education Policy 2020. Those who are in favor may say aye. Aye. Those who are against it will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Madam, I introduce the bill. Now, the House will taken up into consideration of Population Control Bill 2023. Minister of Health and Family Welfare, Shri Nadeem Khanji, please. Honorable Speaker, Madam, I beg to move the Population Control Bill 2023 be taken into consideration. Madam, this bill will ensure disincentive and punitive provision for the population stability of the country under Population Control Act. Madam, from time to time, the Honorable Supreme Court has directed the central government to frame rules, regulations and guidelines to effectively mitigate the problem of overpopulation. I call upon the Honorable Members of the House to openly give their suggestion in this national discussion on Population Control Bill. To solve a national problem, they should rise above party sentiments and help us to pass this bill. Salient feature of some of the important provisions of the bill are as follows. First, this bill will ensure disincentive and punitive provisions are as follows. First, this act shall be applicable only for the married couple, where the boy is not less than 21 years of age and girl not less than 18 years of age. Second, the government shall set up the district population stabilization committee in 100 districts with the highest recorded population growth rate. Third, the government shall give preference to the single child for admission in institutes of higher education. Fourth, the government shall provide preference for selection to the single child in government services. Fifth, both the husband and the wife, in a case of married couple who have more than 2 children, shall be debarred from A. Contesting in Lok Sabha, state legislature and panchayat election. B. Getting promotion in government services. C. Applying for Group A jobs under central and state government. D. Receiving any kind of government subsidy. 6. The government shall introduce a compulsory subject relating to population control in all senior secondary schools. Thank you, Madam. Motion moved that the Population Control Bill for controlling the overpopulation in the country be taken into consideration. Honorable Minister of Social Justice and Empowerment, Mr. Arvind Sarkar, please. Honorable Speaker, Madam, I rise to support the bill. Madam, in 1952, India was the first country in the world which had implemented the policy of family planning as a national program to control its population growth. Main reason to implement this program was to enhance the growth of the national economy and to control other challenges like poverty, illiteracy, malnutrition, etc. But even in 2023, maximum poor of the world live in India, and even India ranked down among the developing countries in terms of child death rate, maternal death rate, health services, etc. As per the latest report of United Nations, India has the highest population in the world in last 100 years, where the world population growth rate shows 3 times increase. Indian population growth rate shows 6-fold increase. This indicated the first failure of family policy.
Madam, if today the population control bill is not passed, so we shall feel shameful to present and our upcoming generation. Now I would like to wind up my speech with 2 lines that appropriate this situation. बिना सोचे समझे इस कदर जो तुम लोग जनसंख्या को बढ़ाओगे, बिना सोचे समझे इस कदर जो तुम लोग जनसंख्या को बढ़ाओगे, एक दिन बिना भोजन और पानी के मर जाओगे. Thank you, madam. Ms. Alisha Singh, what is your opinion about this bill? माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे लगता है कि सरकार की मंशा वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण में है ही नहीं, बल्कि इस बिल के माध्यम आप सभी शांत हो जाइए। बल्कि इस बिल के माध्यम से सरकार ने आम लोगों के निजता के अधिकारों को हनन करने का विचार बना लिया है। यह कब से निर्धारित हो गया है कि देश के नागरिकों के प्रजनन के अधिकार को सरकार नामक संस्था द्वारा नियंत्रित किया जाए। क्या सरकार यह तय करेगी कि कब बच्चे पैदा करने हैं और कितने बच्चे पैदा करने हैं? महोदया, मैं सरकार से कहती हूँ कि जनसंख्या बिल के चक्कर में पड़े हो क्यों, मास्टर स्ट्रोक बताती हूँ, विश्वास कीजिए, जनसंख्या अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। बच्चे पैदा होने पर भी जीएसटी लगवा दीजिए। प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस। महोदया, यह बिल हमारे संविधान द्वारा अनुच्छेद 16 में दिए गए नौकरियों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता तथा अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का भी हनन करती है। अतः महोदया, मैं इस बिल का पुरजोर विरोध करती हूँ। धन्यवाद। मिस्टर मंसूरी प्लीज। धन्यवाद महोदया, आपने मुझे अपना विचार रखने का मौका दिया। महोदया, जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत को पूरा देश समझता है। हमारा देश छोड़िए, ये हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या है, ये विश्व स्तरीय किसी भी संगठन की रिपोर्ट पढ़ने पर भी समझ आता है। सिर्फ विपक्ष को ये समस्या एक समस्या नहीं लग रही। विपक्ष का दुख मैं समझ रही हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण होने से इन्हें क्या परेशानियां होंगी। महोदया, 88 में एक फिल्म आई थी तेजाब, उसका एक गाना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। महोदया, विपक्ष चाहता है कि हर परिवार में इतने ही बच्चे हों। Members, please maintain the decorum of the house. Member, you may continue. क्योंकि अगर 9 बच्चे होंगे तो पढ़ जाएंगे, सीढ़ी तरक्की की चढ़ जाएंगे। फिर बोलो रैली में कौन आएगा, नारे वाले कौन नचवाएगा। अरे होगा कैसे, अरे कैसे होगा, अरे होगा कैसे। फिर इलेक्शन में प्रचार, आजा पिया आई बाहर। तो महोदया, आगे जनसंख्या का यही एक फायदा मुझे समझ आ रहा है, जिसकी वजह से विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। महोदया, एक अनुमान के अनुसार सन 2025 तक हमारे भारत की कुल आबादी 150 करोड़ हो जाएगी। आज विश्व की समस्त गरीब जनसंख्या का 1/3 भाग सिर्फ भारत में है। बाल कुपोषण के मामले में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ज्यादा बुरी हालत में है। महोदया, अगर हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य बुनियादी सुविधाएं हर व्यक्ति तक पहुंचानी है तो जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण किया जाए। यह कानून हमारे देश के विकसित बनने की राह में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। धन्यवाद महोदया। लीडर ऑफ अपोजिशन श्री अनमोल सिंह जी। माननीय सभापति महोदया, इस कानून के द्वारा सरकार की महिला विरोधी मानसिकता का पता चलता है। Members, please maintain the decorum of the house. भारतीय समाज में यह प्रथा वर्षों से रही है कि संतान के रूप में लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। महोदया, मेरी बात का विरोध करने वालों को हमारे देश की लिंगानुपात पर नजर डालनी चाहिए। महोदया, जब भी जनसंख्या नियंत्रण नीतियां लागू की जाती है तो इससे कन्या भ्रूण हत्या, प्रसव पूर्व लिंग जांच एवं लिंग आधारित गर्भपात जैसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। परिवार यह सुनिश्चित करने के लिए दबाव महसूस करता है कि बच्चे लड़के हों और महोदया, इस प्रकार यह कानून देश के लिंगानुपात में और कमी लाएगा। महोदया, आज भारत में जनसंख्या नियंत्रण नीति से ज्यादा जरूरी है जनसंख्या प्रबंधन। अतः जनसंख्या नियंत्रण विधेयक की जगह जनसंख्या प्रबंधन विधेयक की जरूरत है। यह नीति एक और असफल योजना कहलाएगी। अतः मैं नई जनसंख्या नियंत्रण नीति का विरोध करता हूँ। धन्यवाद महोदया। माननीय प्रधानमंत्री जी।
माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2023 का पुरजोर समर्थन करता हूं। मैडम, ये हर देशवासी का सपना है कि वह अपने देश का नाम विकसित देशों की सूची में देखे, लेकिन तेजी से बढ़ती जनसंख्या हमारे सामने एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में खड़ी है। महोदया, जनसंख्या स्थिरता के लाभों को गिनने के लिए हमें बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा अपना पड़ोसी देश चीन इस तरह का सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसने जनसंख्या नियंत्रण के लाभों को प्रभावी ढंग से अपनाया और कुछ ही दशकों में वह स्थिति प्राप्त कर ली जहां वे न केवल जनसंख्या वृद्धि में रोक लगाने में सफल रहा, बल्कि नियत समय में उस स्तर पर पहुंच गया जहां वे आज विकसित देशों के साथ खड़ा है। जब भी कोई विश्व राष्ट्रीय संगठन भुखमरी, भ्रष्टाचार और मानव विकास से संबंधित कुछ सूचकांक जारी करते हैं तो हम तमाम कोशिशों के बाद भी खुद को उसमें शर्मनाक स्थिति में पाते हैं। मेरा मानना यह है कि हमारे समाज की पूरी समस्या अज्ञानता और जनसंख्या नियंत्रण के लाभों के बारे में जागरूकता के कमी के कारण है। हम विशेष रूप से ऐसे लोगों की सोच बदलना चाहते हैं जो यह सोचते हैं कि अधिक बच्चे पैदा कर वे अधिक कमाई वाले हाथ जोड़ रहे हैं। हमें उन्हें यह समझाना चाहिए कि अधिक बच्चों का अर्थ उचित रोजगार के बिना अधिक लोग हैं। राष्ट्र के रूप में हम अपने समाज के सभी वर्गों की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि हमारे समाज का सबसे गरीब सदस्य भी विकास के कार्य में योगदान दे सके। और अंत में मैं कुछ चंद पंक्तियों से अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और इंसान अकेलेपन में घसता जा रहा है। माँ बाप के 4 बेटे एक से बढ़कर एक, माँ बाप के 4 बेटे एक से बढ़कर एक, लेकिन बुढ़ापा फिर भी लाचारी में घटता जा रहा है, लाचारी में घटता जा रहा है। धन्यवाद महोदय। Minister of Health and Family Welfare, Shri Nadeem Khan ji, please. Honorable Speaker, Madam, I am grateful to all the members who have rendered their esteemed support to the bill. I am also grateful to the members who have given their constructive criticism on it. The areas of concern raised by Honorable Opposition have already been thought and attained to. Now, I expect full cooperation from all the members of the House to pass the bill. Thank you, Madam. The question before the House is that the Population Control Bill 2023 be taken into consideration. Those who are in favor may say aye. Aye. Those who are against it will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Clause by clause consideration. Now, the question is that clause 2 to 6 stand part of the bill, but there is an amendment in clause 5 by Ms. Alisha Singh. Are you moving it? No, madam. The question is that clause 2 to 6 stand part of the bill. Those who are in favor may say aye. Aye. Those who are against it will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Clause 2 to 6 stand part of the bill. That clause 1, the applicability stands part of the bill. Those who are in favor may say aye. Aye. Those who are against it will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Minister of Health and Family Welfare, please. Madam, I move the bill be passed. Thank you, Madam. Motion moved that the bill be passed. Those who are in favor may say aye. Aye. Those who are against it will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Now, the House will take in a private member resolution. Ms. Harshita Sharma to move the resolution. Madam Speaker, I move the following resolution. This House recommends that the government should first take steps to promote sports, games
and develop sports infrastructure in the school. And second, also make provisions to create secure career opportunity for sports persons. महोदय, हमारे देश में क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल जैसे खेलों पर तो ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर सही से ध्यान केंद्रित नहीं किया जा रहा है। आज भी माता पिता पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब के विचार को सही मानते हैं। महोदय, आज भी हम 140 करोड़ आबादी के बावजूद किसी भी एक ओलंपिक में 10 पदक भी नहीं ला सके हैं। आज तक हमारे देश ने कुल 35 मेडल जीते हैं, जिनमें से 12 तो सिर्फ हॉकी से ही आए हैं। महोदय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक तालिका में ऊपर आने का सपना तब तक पूरा होना मुश्किल है जब तक कि स्कूलों में खेल कूद को लेकर उतना ही ध्यान ना दिया जाए जितना पढ़ाई पर दिया जा रहा है। ऑनरेबल स्पीकर मैडम, I move the resolution for the reason that there is no such law which directly focuses and promotes sports at school level. I wish one day being a sports person will become equally acceptable as being a doctor or engineer for Indian society. India will win podium finishes in Olympics too. Minister of Youth Affairs and Sports, Shri Akshay Verma, please. Madam Speaker, I would like to congratulate the mover of resolution, Harshita Sharma ji, who spoke for focusing on matter of public importance. Madam, our government had already taken several initiatives like Fit India Movement, Khelo India, Target Olympics Podium Scheme, Mission Olympics 2024, Rajiv Gandhi Khel Abhiyan, and many more to promote sports and games and development of infrastructure. Madam, I want the mover of resolution to know that government is very much aware about lack of infrastructure and attitudinal problem of school system and parents. The government is making sure that major efforts are made in fields of sports and games. NEP 2020, I repeat, NEP 2020 takes care of holistic development of children by including sports and games and develop sports and games. In light of the issue raised by Honorable Member, I reiterate the commitment of government to ensure promotion of sports and games and development of infrastructure. I thus request the member to withdraw the resolution. Thank you, Madam. Mrs. Harshita Sharma ji. Madam Speaker, I am grateful to the Honorable Member for lending support to my resolution. In view of assurance given by Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, I may be allowed to withdraw this resolution. Has the Honorable Member leave of the House to withdraw her resolution? Yes. The resolution by leave of the House is withdrawn. Now, the House is adjourned to meet tomorrow again at 11 a.m.